Good morning, everyone. We are moving towards a new session of the courtroom to classroom, and this session is in regards to the Indian Evidence Act or the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Today, before starting this act, we need to know the basic concepts and basic overview how this act needs to be read out, how this act needs to be interpreted out. हमें ये देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें जिन एविडेंसेस के बारे में डील कर रहे होंगे, जिन फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, हम उसका प्रोसेस कैसे देख सकेंगे. व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ reading those facts and interpreting those facts and the evidences which are mentioned again and again in this Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Now question comes, if we look into the introductory part of this act. अब इस एक्ट में मैं दोनों चीजें गवर्न करूंगा एंड आई मेक श्योर दैट द रेड मार्कर belongs to Indian Evidence Act and the blue marker if we are writing the section numbers and everything. Rest, both the acts are similar in nature. There is no such change that we need to know. बहुत minute changes आए इस एक्ट के अंदर, so हमें ऐसा नहीं है. And why we are reading both the laws? Reason being, in the last from the last 1 year we are facing the same thing, that the examiners, that the recruitment boards, that the PSCs or the high courts, whatsoever it is, they are asking the same, they are asking both the pertaining to both the acts. That is the reason we will be dealing into both the acts. Now question comes, if we are talking about how to interpret all those things and how to go with the process of the facts and the evidences, so हमें उसके लिए इसका overview भी देखना पड़ेगा. We'll be dealing after the introduction इसका overview to know एक sort of ready reckoner है, so that we get to know, so that we know कि कैसे इन sections का breakout हुआ है और वो क्यों हुआ है, and what are the reasons of breaking out those section into a different segment of the Indian Evidence Act or the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. सबसे पहले if we talk about, we'll be dealing generally of Indian Evidence Act so that it might cover the BSA. अगर हम बात करते हैं तो we have Indian Evidence Act. सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने प्रीलिम्स के पेपर में जो यहाँ से देखने को मिल रहा है वो ये मिलता है, हु इज द फादर, हु इज द राइटर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट जेम्स एफ स्टीफन. बट क्वेश्चन आता है क्या बीएसए में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये इनेक्ट कब हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट के टर्म्स में बात करें तो ये इनेक्ट कब हुआ? तो इनेक्ट के लिए हमारे पास डेट आती है यहाँ पे 15th of March 1872. बट इफ वी नीड टू नो कि व्हाट इज द इन रिगार्ड्स टू द बीएसए, तो वी हैव 25th of December 2023. ये दो डेट तो हमें याद रखनी है. 25 दिसंबर को लेकर आए थे 2023 में और 1 जुलाई 2024, एंड आई बिलीव दैट नो वन विल फॉरगेट दिस बिकॉज इट कम्स फॉर अस एज अ ब्लेंडर. तो मुझे नहीं लगता दैट वी विल बी एबल टू फॉरगेट दिस डेज और दीज डेट्स एवर इन आवर लाइफ. नाउ कमिंग कि ये इनेक्ट 15 को हुआ, ये फोर्स में कब आता है? इन फोर्स में कब आता है? तो ये फोर्स में आता है 1st of September को, on the same year, in the same year 1872. यहां पे अगर हम बात करें तो it comes 1st of July 2024. यहां तक तो सब कुछ ठीक है. That we have seen that Indian Evidence Act was written by James F. Stephen. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रोविजन है because we have copied the Indian Evidence Act totally. इसमें there is nothing to hesitate while saying that we have copied the actual thing. We have not made ourselves. हमने शायद थोड़ा सा प्रोसेस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का उसे थोड़ा सा उसका प्रोसेस चेंज किया होगा, और वो भी चेंज हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के इन रिगार्ड्स में किया है. हमने खुद से कोई मेहनत नहीं करी है इसमें. If the drafters are saying, if Mr. Mahesh Jetmalani is saying that you have changed the law, sorry mister, you have not changed the law. Now coming कि ये एक्ट अगर आपने पास करवाया था तो ये एक्ट
अगर पास हुआ था तो उस समय वी हैव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये क्वेश्चन में कई बार देखने को मिल चुका है that we had an imperial legislative council जिसने 1872 में इस इंडियन एविडेंस एक्ट को पास किया है. और इफ वी टॉक अबाउट बीएसए, तो हमारे पास बीएसए के अंदर पार्लियामेंट है ही, उसके लिए हमें कुछ कहना ही नहीं है. 2023 में पास कर दिया बिल, इनेक्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है. इट इज इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ. नाउ क्वेश्चन कम्स कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट या इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है क्या? एक लीगल सेट ऑफ रूल्स है एविडेंसेस के, जो हमें तीन चीजों पे डिपेंड करेंगे कि हमें हमारे सामने फैक्ट क्या होगा, हमें उसे प्रूफ कैसे करना होगा और कौन उसे प्रूफ करेगा. इन तीन क्वेश्चंस के अंदर ही पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट और पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है. दे आर द ओनली थ्री क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. एक, what facts may be used in evidences, how such facts are to be proved, how such evidence, and by whom and in what manner such evidences has to be produced. ये तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे. अभी हम विल राइट दोस क्वेश्चंस. ये तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे ऑन विच वील बी डीलिंग द ओवरव्यू ऑफ द होल इंडियन एविडेंस एक्ट. एक क्वेश्चन हमारे सामने इसी को लेकर ये भी आता है एग्जाम में. अगर हम प्रीलिम्स में देखते हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस क्या प्रोसीजरल लॉ है, या क्या सब्सटेंटिव लॉ है. हमेशा या फिर दोनों है, whether it is a procedural law or whether it is a substantive law. Now this question always comes in before the exam, before us in the exam. और हमें इसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो we need not to mug up those laws whether it is of procedural in nature or substantive in nature. Generally need to crack, if we need to crack the 1 mark question, we have the answer, that is the procedural law. But question आता है what actually the procedural law means. Procedural laws are those laws, अगर मैं उसको जनरल राइट में बोलूं कि if we have any right और उस राइट को हमें इन्फोर्स करना है. So for the enforcing of the right, if we are compelling, अगर हम किसी को कंपेल कर रहे हैं टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, मेरी बात समझना. अगर सब्सटेंटिव लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ वो राइट है जिसके बारे में अभी मैं यहां पे बात कर रहा हूं. सब्सटेंटिव लॉ एक राइट है, एक आपको राइट दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि हम आईपीसी में चल लेते हैं, आईपीसी के अंदर बताया हुआ है that these are the acts, and if this act has been committed by you, then it become a liability and that will be an offense for you. तो ये बताया हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा तक है तब तक तो कुछ नहीं है, बट अगर इसमें आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आपने एक ऑफेंस कर दिया. वहां पे कुछ राइट्स बताए हुए थे. अब उन्हीं चीजों के लिए इट हैज बीन कंपेल्ड, अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, और ये जो कंपेल आप कर रहे हो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, इसका एक प्रोसेस होता है. ये जो प्रोसेस जहां पर मेंशन है, ये जो प्रोसेस जहां पे मेंशन है, हम उसको प्रोसीजरल लॉ कहते हैं. सिंपल डेफिनेशन, कहीं पे मेंशन नहीं है कि व्हाट आर द प्रोसीजरल लॉज, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन नहीं है. दैट द प्रोसीजरल लॉज और प्रोसीजरल लॉज आर दोज लॉज फॉर द कंपेलिंग ऑफ द फॉर द enforcing of the rights where the person have been compelled to perform their duties, and if the person is compelled to do their duties in light of the procedure which has been prescribed, those laws where the law has been prescribed is said to be known as the procedural laws. अब ये procedural law आपको प्रोसीजर बताता है. दिस टेल्स यू द प्रोसीजर बिफोर द अथॉरिटी. आपको अथॉरिटी के सामने कैसे जाना है, किस वे में जाना है, अपनी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करना है. बिफोर द जुडिशियरी, आपको कोर्ट के सामने अपने फैक्ट्स को, अपने एविडेंसेस को कैसे रखने होंगे, ये आपको बताता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीपीसी.
The name itself says Code of Civil Procedure. The name itself says that it is a procedural law. आपको हर चीज का एक प्रोसीजर बताया ना उसके अंदर, कि आप पहले प्लेंट को ये कंटेंट्स होंगे, आप प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करोगे, ऐसा होगा, ऐसे इन केसेस में ऐसे रिजेक्शन होता है, तो आप ये ला सकते हो। इफ यू वांट टू अमेंड योर प्लीडिंग्स, आप ऑर्डर 6 रूल 17 में जा सकते हो। तो ऑल दोस प्रोसीजर हैज बीन सेट अप by the procedural enactment, and that is what we have CPC. If I talk about CRPC, तो CRPC में भी आपको बताया हुआ है that if you are filing the anticipatory bail under 438 439, आप सेशन कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो CRPC के अंदर। and for pertaining to the same, क्या CRPC में सब्सटेंटिव लॉ है? यस, चेक इट आउट। अगर आप 125 में मेंटेनेंस की बात कर रहे हो तो राइट टू मेंटेनेंस है, वहां पे आपको एक राइट दिया हुआ है। ये राइट अगर दिया हुआ है तो मैंने कहा वो सब्सटेंटिव राइट है। तो सीआरपीसी तो सब्सटेंटिव भी है, प्रोसीजरल भी है, राइट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर इंडियन, मेरे सामने क्वेश्चन एग्जाम में मुझे देखने को मिलता है, इफ इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए अगर प्रोसीजरल लॉज हैं, इफ आईए और बीएसए इज procedural laws, then what kind of rules need to be followed? Then what kind of rules need to be followed? एक क्वेश्चन हमारे सामने ये होता है, और हम अगर इस क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन में अगर हम ये सब क्वेश्चन प्रेफर करें वेयर द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड फॉर द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो हमें इस क्वेश्चन के इसेंस को समझना पड़ेगा। मैंने बोला था अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक, कौन से फैक्ट्स, व्हाट फैक्ट्स में बी यूज्ड इन एविडेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने यही क्रक्स होगा। आपके पास बहुत सारी बातें आएगी। अगर मैं सेक्शन 5 to 15 और 5 to 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 4 to 14 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर देखूं, तो मुझे बताया गया है कि अगर मैंने ए मर्डर्ड बी, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, तो आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो ये शो करते हैं कि ए ने ही बी का मर्डर किया। A was seen by someone at the time of the death of B. A वहां से गुजर रहा था, someone had eyewitnessed him. A के हाथ में उस समय नाइफ था जिस नाइफ से उसकी डेथ की गई है। अब ये फैक्ट्स हैं, क्या हम इनको एविडेंसेस में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। एंड इफ वी इंटरप्रेटेड दिस क्वेश्चन, तो आपका 1/3 जॉब तो पूरा हो चुका है इन लाइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। व्हाट फैक्ट्स में बी यूज्ड इन एविडेंसेस? आई सॉ व्हेन आई वाज मूविंग फ्रॉम द रोड, आई सॉ देयर इज अ हाउस, और मैं इस घर को डेली देखता हूं और इसकी लाइट्स इस समय तक ऑफ नहीं होती है। आज इसकी लाइट्स ऑफ है, इट मींस नो वन इज देयर एट 8:30, नो वन इज देयर, समवन, ये लोग कहीं जा चुके होंगे। सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी। आप सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जाके देख लो, वहां पे अपॉर्चुनिटी, अकेशन, इन सब का मीनिंग दिया हुआ है, स्टेट ऑफ थिंग दिया हुआ है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, या फिर क्या ये आपके पास अकेशन आ गया दैट यू वेंट इनसाइड द हाउसेस, यू डिड द थेफ्ट, यू, आपने चोरी कर ली, आपने चोरी कर ली है, समवन वाज देयर, यू मर्डर्ड। अब क्वेश्चन आपके सामने यही चीजें आ रही है कि क्या ये चीजें रेलिवेंट होगी या नहीं होगी। सो दिस all certain to these things are covered in pertaining to this question. क्या वो फैक्ट हमारे लिए एविडेंस हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन, अगर मानो कि मैंने ये बोल भी दिया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, कि ओकेजन था कि मैं उस घर के अंदर घुसा, तो मैं उसको प्रूफ कैसे करूंगा? तो दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने ये कि वो उस घर में घुसा तो वो इसी पर्पस के लिए घुसा क्योंकि उसे चोरी करनी थी, क्या मैं इसे प्रूफ कर पाऊंगा? तो मेरे पास एक एडिंग हेल्प दिया गया इस एविडेंस एक्ट के अंदर, दैट हाउ सच फैक्ट्स मे बी प्रूफ।
आपको सबसे पहले उस फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा. दैट इज द क्वेश्चन विल लाई बिफोर यू. और ये आपको हेल्प आउट करेगा कहीं ना कहीं आपका खुद का इंडियन एविडेंस है. कैसे प्रूफ करोगे? आप कोई प्राइमरी एविडेंसेस दोगे, आप कोई सेकेंडरी एविडेंसेस दोगे. हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे दो, हो सकता है आप सीसीटीवी फुटेजेस दे दो, ये कुछ भी हो सकता है. अगर आप इस फैक्ट को प्रूफ करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं, ये फैक्ट आपके सामने प्रूफ कैसे होगा. सो वी हैव सो मेनी थिंग्स. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमें दिए हुए हैं टू प्रूफ दोस फैक्ट्स. हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है हमारे सामने, कुछ प्रिजम्पशंस भी हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा. बट क्वेश्चन यहां पे ये फंसता है कि ये भैया प्रूफ कौन करेगा और किस वे में प्रूफ करेगा. तो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, बाय whom and in what manner, by whom and in what manner such evidences is to be produced. मुझे ये क्वेश्चन की कंपैटिबिलिटी तो पता चल चुकी थी और मैंने पूरा इंटरप्रिटेशन भी इसी कॉन्सेप्ट पे देख लिया. आई हैव रेज द क्वेश्चन टू माई सेल्फ. मैंने क्वेश्चन अपने से ही पूछा, अगर प्रोसीजरल लॉ है इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो मैंने सबसे पहले बोला, इफ देयर इज एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से उसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एविडेंसेस की तरफ ले जाए. मैंने उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिया. यू हैव जम्प्ड इनटू द हाउस ऑफ समवन ड्यू टू द शटिंग डाउन ऑफ द लाइट्स, और उस स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, उसी की रीजन की वजह से यू जम्प्ड इनटू द हाउस एंड यू फाउंड दैट देयर इज नो वन एंड यू गॉट अ चांस टू steal the things and you have committed an offense of theft. Now question come, कौन सा फैक्ट है. आपके पास एक ओकेशन आया था, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, दैट यू जंप टू द ड्यू टू द लाइट्स बीइंग स्विच्ड ऑफ, राइट. दूसरा, आप इन फैक्ट्स को कैसे, अब ये तो दिस इज बिग, अब कोई इस फैक्ट को प्रूफ कैसे करेगा, तो उसे समझाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एंड इट शोज एंड इट क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी pertaining to the accused for this said offenses or said the accusations. Now question comes, वो प्रूफ कैसे करेगा, किस तरीके से प्रूफ करेगा. तो हमारे पास वहां पे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन. इफ आई एम कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट, वी हैव अ क्रॉस एग्जामिनेशन, वी हैव एन एग्जामिनेशन. बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे सामने आ जाता है. बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? ऑल दोज आंसर्स आर लाइंग इनटू दिस थ्री सेगमेंट्स, और ये तीन सेगमेंट के अंदर ही पूरा हमारा गेम जाता है. अगर हमें ये तीन सेगमेंट के आंसर्स अच्छे से इंटरप्रेट करने आ जाएं, तो विल मास्टरी द एविडेंस एक्ट, will mastery the evidence act. No doubt in this. If we are able to recall or to interpret all those questions which has been raised in front of us, तो हमने बॉस मास्टरी कर ली एविडेंस एक्ट के अंदर. अब मुझे एक चीज और बतानी है. इंडियन एविडेंस एक्ट कहीं ना कहीं डील कर रहा है, आपको एक राइट दे रहा है कि आप एज अ पर्सन शो कर सकते हो कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और इफ द सो बेसिकली द इंडियन एविडेंस एक्ट गिव यू द वेज, आपको रास्ते बता रहा है, आपको ये सारी चीजें बता रहा है. सो टू द पर्सन टू शो दैट दी सर्टेन फैक्ट्स, इनकी एग्जिस्टेंस है या इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है. और अगर आप इनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को, किसी भी चीज को स्टैब्लिश कर सकते हो, तो आप एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट एंड द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज कर सकते हो. मेरी बात समझना. I have said that the Indian Evidence Act deals with the ways. It gives you the path basically. It deals with the ways parties को, for the parties to show the existence or
non-existence of the facts. It deals with the ways for the parties to show the existence and the non-existence of the facts and circumstances भी लिख लो. So as to establish, now this becomes very important, so as to establish the existence and non-existence of right and liabilities of parties. अगर parties की right and liabilities है तो आप उसको establish करने के लिए वो facts बताओ कि क्या whether those facts exist or not. और आप ये बता पा रहे हो is due to the Indian Evidence Act to the भारतीय साक्ष्य अधिनियम because it gives you the ways. और ये सारे ways इन्हीं तीन क्वेश्चन के अंदर हमें दिए हुए हैं. ये इन्हीं तीन क्वेश्चन के अंदर हमें सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, सारे लॉज दिए हुए हैं. एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमारे पास फिर से आता है, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हमारे पास फिर से आता है कि क्या लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स वोरी है. क्या लॉ ऑफ एविडेंस लेक्स वोरी है? द आंसर इज यस. नाउ क्वेश्चन कम्स व्हाट एक्चुअली द लेक्स वोरी मींस. मेरा सिंपल सेड दैट इट इज लॉ ऑफ नेशन. जहां पे प्रोसीडिंग्स चल रही है और जिस प्रोसीडिंग्स में जिस लॉ को यूज किया जा रहा है दैट बिकम्स अ लॉ ऑफ नेशन. तो लॉ ऑफ एविडेंस भी हमारा लेक्स वोरी लॉ है. एक क्वेश्चन आपको प्रोसीजरल लॉ के साथ ही देखने को मिलेगा कि क्या ये एडजेक्टिव लॉ है, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है प्रोसीजरल एंड एडजेक्टिव लॉ. वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस इनटू द सेम. प्रोसीजरल लॉ कह दो, एडजेक्टिव लॉ कह दो, दोनों बात सेम है. एक क्वेश्चन एग्जाम में और दिखता है जिससे पीपल गेट्स इनटू द ट्रबल, द कैंडिडेट्स गेट्स इनटू द ट्रबल ऑफ प्री में क्वेश्चन हमेशा दिखता है कि क्या एक्ट व्हाटसोएवर द एक्ट इट इज, क्या वो एक्ट एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है, वेदर द एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव. अगर हम इसके बारे में बात करें कि क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है और नॉन एग्जॉस्टिव है, तो उसको हमें समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या ये सच्ची में ये एक्ट एग्जॉस्टिव है, या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली द एग्जॉस्टिव मींस, व्हाट एक्चुअली द नॉन एग्जॉस्टिव मींस. एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि कंप्लीट है खुद में, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. इस लॉ के बाहर कहीं जाना ही नहीं है आपको, ये लॉ ही सफिशिएंट है फॉर एनीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग. फॉर एनीथिंग और फॉर एवरीथिंग दिस लॉ विल सफाइस. if this law will suffice, if this law will suffice for anything and everything, for anything and everything. ये टेस्ट लगा लेना आप कहीं पर भी, आप अपने आंसर पे आ जाओगे कि whether the act is itself exhaustive और नॉन एग्जॉस्टिव. अब हम आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट पे टू टेस्ट दिस कि क्या ये है. तो बॉस मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव के बारे में बात कर रहे हो तो एक टेस्ट तो आपके सामने ही है, और इस टेस्ट को आपको किस वे में देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर आपको आपका प्रीएम्बल देता है. अब आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपको प्रीएम्बल देखना पड़ेगा. इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल देखते हो तो साफ साफ बोलता है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट to consolidate, define and amend the laws relating to laws of evidence. बहुत सिंपल है. इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल बोलता है whereas it is expedient to consolidate, define and amend, define and amend the laws relating to laws of, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं law of evidence. It is expedient to. और जब मैं बीएसए के बारे में बात करता हूं तो बीएसए बोलता है दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड द जनरल रूल्स. अगर कोई एक्ट टू कंसोलिडेट, मैं इसको जनरल वे में लिख देता हूं जो वहां पे लिखा हुआ होगा, टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड द जनरल रूल्स. नाउ जनरल रूल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंसेस लिख दो, and principle of evidences.
थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, बिकॉज इफ आई एम नॉट रेफरिंग द एक्ट तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इन जनरल सेंस यही है पॉइंट। आपको ये टेस्ट करना है कि वेदर द एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट एग्जॉस्टिव, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। एंड आई हैव वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट एग्जॉस्टिव मींस द लॉ इज इटसेल्फ कंप्लीट इन हिमसेल्फ। और दूसरा, अगर वो लॉ खुद में सफाइस कर जाता है फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो आपको समझ लेना है दैट द एक्ट इज वेरी एग्जॉस्टिव इन नेचर। Now, from where will you get that the act is complete in itself? You need to know, or you need to interpret the preamble which has been mentioned before the enactment of the act. और आपको ये प्रियम्बल बता पाएगा कि क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है नहीं है। इसके लिए जब आप उसको प्रियम्बल को देखते हो, तो हमने फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल देखा, जो कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड ऑल द लॉज रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंसेस। जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लॉ प्रियम्बल देख रहे हैं, तो कह रहा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड द जनरल रूल्स। अब क्वेश्चन में मेरे सामने यही आ गया, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड, प्रोवाइड जनरल रूल्स। क्या पॉक्सो में भी यही रूल्स चलाओगे क्या? व्हाट अबाउट पॉक्सो? व्हाट अबाउट जे? क्या करोगे? यहां पर भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने अपने खुद के एविडेंसेस के लॉ नहीं बनाए क्या? सी क्या सीपीसी और सीआरपीसी आपको एविडेंस के बारे में कहीं बता नहीं रहे? सोचो। बर्डन ऑफ प्रूफ, राइट टू बिगिन। बर्डन ऑफ प्रूफ अभी आप इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे साथ देखोगे 101 में से लेके 114 तक। बट क्या आप ये सीपीसी और सीआरपीसी में नहीं देखोगे? जाओ चेक करो ऑर्डर 18, जाओ चेक करो ऑर्डर 14, गो एंड चेक इट आउट। राइट टू बिगिन किसके पास है? कैसे स्टैब्लिश होगा? एग्जामिन कौन करेगा? किसके पास क्रॉस एग्जामिन का राइट है? ये सारी बातें कर कौन रहा है? एविडेंस एक्ट इज डूइंग इटसेल्फ, आई एम नॉट सेइंग इट नो, बट इन एडिशन टू दैट सीपीसी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम। व्हेन इट इज सो, तो इसका ये मतलब है कि जो मेरा आंसर है, वेदर जो मेरा क्वेश्चन है, वेदर दिस लॉ विल सफाइस और नॉट, द आंसर इज नो, इट विल नॉट सफाइस योर लॉर्डशिप। The rest is my case. The rest is my case. It means it is non-exhaustive in nature. क्या ये बात क्लियर हो गई? इंडियन एविडेंस एक्ट नॉन एग्जॉस्टिव हो गया हमारा। आई बिलीव आई एम एबल टू क्लियर ऑल दोज क्वेश्चंस जो इंट्रोडक्शन के पार्ट से आते हैं। Now, pertaining to this, we have another segment. अब ये सेगमेंट जो हमारे सामने आ रहा है, we need to understand those segment. ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे चलता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 वर्क्स ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमें समझने पड़ेंगे, बिकॉज whenever we are finding the facts, whenever we are proving those facts, and whenever we are looking to produce those facts before the honorable courts, we need to know the basic concept, basic fundamental principles of the Indian Evidence Act or Bharatiya Sakshya Adhiniyam to before we produce the facts. हाँ, वो है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, एक आपका जो एविडेंस है वो उसी इश्यू से रिलेटेड होना चाहिए जिस इश्यू पे आप बात कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना ए के मर्डर की बात कर रहे हो, आप डी के मर्डर के एविडेंसेस लेकर आ रहे हो, व्हेन इट इज नॉट को रिलेटेड टू दिस। इफ इट इज, देन ऑब्वियसली यू मे। दूसरी चीज आपने हमेशा सुनी होगी कि जो हियरसे एविडेंसेस हैं वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में अलाउ नहीं है। तो साफ साफ बोलता है वो, ये एक मैं से कह सकता हूं प्रैग्मेटिक रूल भी है, दैट हियरसे एविडेंसेस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तो मैंने कहा दो प्रिंसिपल्स मैंने अभी तक बताया, दैट एविडेंसेस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इश्यू, एंड सेकंड द हियरसे एविडेंसेस मस्ट नॉट बी एडमिटेड।
तीसरा सबसे बेस्ट जो है उसे हम कहते हैं बेस्ट एविडेंस रूल। वो कहता है बेस्ट एविडेंसेस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस। आपको बेस्ट एविडेंस देना है, आपका जो बेस्ट है वो दो टू प्रूव योर केस। तो ये कहता है दैट एविडेंसेस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इश्यू। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं को लेके, इन 3 पॉइंटर्स को लेके ही आप क्वेश्चन एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर सकते हो फॉर सर्टेन थिंग्स। दूसरा, आप hearsay evidences must not be admitted in any case। आप hearsay evidences की बात ही मत करना। अब must not be admitted, ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है इसके एक्सेप्शंस नहीं है। देयर आर द सर्टेन एविडेंसेस जो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिमसेल्फ डिक्लेयर्स दोज, बाय इंटरप्रिटेशन वी गॉट टू नो। बट अब तीसरा मैंने आपको बताया कि बेस्ट एविडेंस रूल। ये बेस्ट एविडेंस रूल मैं आपको बताऊंगा जब व्हेन विल बी रेफरिंग टू प्राइमरी एविडेंसेस, व्हेन विल बी रेफरिंग टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, व्हेन विल बी रेफरिंग द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो मैं बताऊंगा बेस्ट एविडेंसेस रूल क्या होता है। बेस्ट एविडेंसेस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। और इसमें तो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं बेस्ट एविडेंसेस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस पर। ये आपका एक जनरल एक आइडिया हो गया है कि व्हाट एक्चुअली द लॉ टॉक्स अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट क्वेश्चन अभी यहां नहीं आ रहा। क्वेश्चन एक और जो मेंस में आपके पास 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, और जनरली 1 नंबर के प्रीलिम्स में भी आता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं उसको लेके। द कैंडिडेट्स माइट सफर ड्यू टू द कंफ्यूजन, क्योंकि वो जनरल नहीं आता। दैट वी नीड टू मग अप दोस थिंग्स। अगर आप मग अप कर रहे हो इस चीज को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। द क्वेश्चन कम्स लाइक, क्या रूल ऑफ एविडेंस, whether it is applicable, whether it is applicable for civil and criminal, बता दो आंसर। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यू माइट क्रैक द आंसर। योर आंसर विल कम्स यस फॉर सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। ठीक है, ये एक स्टेज है। लेट्स लेवल अप द स्टेज अगेन। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग्स में। all the rules of evidences are applicable for civil and the criminal proceedings। ऑप्शन स्टेटमेंट बी आता है आपके सामने, सम ऑफ द रूल ऑफ द एविडेंसेस अप्लाइड टू द क्रिमिनल लॉ। ऑप्शन सी आता है सम ऑफ द रूल्स ऑफ एविडेंसेस अप्लाइड टू सिविल। ऑप्शन डी आता है आपसे, स्टेटमेंट डी आपके पास आता है, स्टेटमेंट 4 आपके पास आता है, दैट ऑल द रूल्स of the evidences are applicable for civil and criminal except certain principles of rules of evidences। Now choose the best. The option 4 will fetch you the 1 mark over in this prelims paper। The question comes why। अभी तक आपको पता था सिविल के पेपर में भी हमें इंडियन एविडेंस एक्ट लिख के आना होता है, क्रिमिनल के पेपर में भी हमें वही लिख के आना होता है, हम पढ़ के वही जाते हैं। फिर क्वेश्चन फंसता है कि ये अलग अलग कहां से आ रहा है। आपका जनरल रूल तो सही है बॉस। जनरल रूल तो कहता है कि आप एप्लीकेबल हो टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, नो डाउट इन दिस। आप सिविल और क्रिमिनल पे हो, बट मैं आपको कुछ ऐसे प्रोविजंस बता सकता हूं यहां पे। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। चलो मेरे साथ, लेट्स गिव यू द एक्सेप्शन फॉर दिस। आपको एक्सेप्शन जानने, चलो मेरे साथ कन्फेशन पे। मुझे बताओ, आई एम नॉट रिटायरिएटिंग द सेक्शन नंबर व्हाट द सेक्शन नंबर सेज, बट आई एम सेइंग व्हाट एक्चुअली द कन्फेशन मीन। कन्फेशन क्या सिविल में कन्फेस करोगे आप? क्या कन्फेस की लाइबिलिटी है वहां पे? क्या संजय दत्त वाला केस ऐसे ही फेमस हो गया फिर? क्या कन्फेशन की लाइबिलिटी क्रिमिनल नेचर की है? अगर ये क्वेश्चन आपके पास क्लियर होता तो आपको ये क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन था, वेदर द रूल ऑफ एविडेंसेस विल बी एप्लीकेबल टू सिविल और क्रिमिनल, इसका आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं आती। भाई कन्फेशन इज ऑफ टोटली अ क्रिमिनल लाइबिलिटी।
आपने अगर कन्फेस कर लिया सिविल लाइबिलिटी में, तो क्या मान लिया जाएगा क्या? आप उसको वापस चैलेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो बॉस, क्योंकि सिविल लाइबिलिटी हैज टू बी प्रूव्ड फॉर द बाय द प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी रादर दी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। आर यू अग्री विथ माय पॉइंट? दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, कन्फेशन तो ठीक है, आप मेरे साथ चलो कैरेक्टर पे। जब आप मेरे साथ इंडियन एविडेंस एक्ट में कैरेक्टर पे चलोगे, तो कैरेक्टर सेक्शन 52 से 55 में दिया हुआ है। मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे अभी आता हूं। मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं, 52 से 55 में दिया हुआ है। 53 और 54 अगर आप बात करते हो तो कैरेक्टर ऑफ अक्यूज्ड है। और अगर आप अक्यूज्ड के कैरेक्टर की बात करोगे मेरे सामने, तो मुझे तो क्लियर पता है कि आप क्रिमिनल नेचर की बात कर रहे हो बॉस। क्या ये सेक्शन सिविल पे अप्लाई हो रहे हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। आप मेरे साथ एक और सेक्शन में चलो, ये सेक्शन 155 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहां पे कैरेक्टर की बात हो रही है, वो भी प्रोसिक्यूट्रिक्स की। द पर्सन हु हैज कमिटेड द रेप, जाके चेक कर लो। अरे रेप इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी एंड जहां तक मैंने पढ़ा है तो क्रिमिनल ही होता है भैया, सिविल थोड़ी ना हो गया इतना बड़ा ऑफेंस। उसकी ग्रेविटी देखो, उसकी इंटेंशन देखो, उसका एक्ट देखो आप। हुआ ना सेक्शन 376 या सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, देख लो, क्रॉस चेक कर लो। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना that there are the certain exceptions which says that sorry we are only and exclusively applicable to criminal in nature। अगर आप मेरे साथ फिर से इंडियन एविडेंस एक्ट में जाना चाहते हो, तो आप कॉम्पिटेंसी देख लो ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। आपके पास अंडर सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, आप एक बार जाके देख लो स्पाउस का। ये स्पाउस का है, आप कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ऑफ नॉट हस्बैंड एंड वाइफ की कॉम्पिटेंसी नहीं, कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस एज द स्पाउस टू द अदर स्पाउस। मैं अपने वाइफ के लिए या मैं अपने हस्बैंड के लिए जो भी विटनेस, एज अ विटनेस मैं क्या कॉम्पिटेंट हूं? तो नहीं हो सकते ना यार, नहीं हो सकते। बट सिविल में नहीं हो सकते बॉस, क्रिमिनल में तो हो सकते हो। प्रोसीडिंग्स चल रही है आपके अगेंस्ट भी। क्रिमिनल में हो तो फिर रूल ऑफ एविडेंस फिर बदल गया आपका। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स। आप मेरे साथ सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना, वहां पे तो बोला गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ में रिलैक्स मिल जाता है अक्यूज्ड को। अगर आप मेरे साथ सेक्शन 105 और 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पढ़ोगे, तो वहां पे बोला जाता है कि आपको रिलैक्स मिल जाता है अक्यूज्ड को अपने ग्राउंड को प्रूफ करने के लिए, और उस सिविल लाइबिलिटी में जाके अपने ग्राउंड को प्रूफ करता है ऑन प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रादर देन प्रूविंग इट ऑन टू द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। व्हाट टू प्रूव? द जनरल एक्सेप्शन। साहब मैं इस एक्सेप्शन में फॉल करता हूं अंडर द आईपीसी। है क्रिमिनल नेचर का, प्रूफ सिविल से हो रहा है, बट है तो क्रिमिनल नेचर का, डील कर लो इससे फिर। एक्सेप्शन है ना बॉस, क्यों नहीं है? आप मेरे साथ, ये तो आपके पास क्रिमिनल नेचर के हो गए, ये तो आपके पास क्रिमिनल नेचर के हो गए। व्हाट इफ आई टॉक अबाउट सिविल नेचर? आपके पास एस्टॉपेल का राइट है, ये राइट भी है और इसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट में बताऊं तो सेक्शन 115 टू 117 में आपको एस्टॉपेल दिया हुआ है। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू द शू ऑफ समवन, आप वापस नहीं आ सकते बॉस उससे। आप अपना पैर निकाल के जूता बाहर नहीं फेंक सकते हो। वंस यू हैव सेड और डिक्लेयर्ड और एक्टेड इन सर्टेन मैनर, नाउ यू कैन नॉट रिबाउंड योरसेल्फ बैक। दिस इज व्हाट एस्टॉपेल इज। एंड ये सिर्फ सिविल में ही हो सॉरी, ये सिर्फ सिविल में ही होता है, क्रिमिनल इन नेचर में नहीं हो रहा है। दिस इज द आयरनी। यहां पे आप कैरेक्टर देख लो, जो मैंने वहां पे अक्यूज का बताया था, यहां पे मैं सिविल केसेस में कैरेक्टर बता रहा हूं। आप मेरे साथ सेक्शन 112 देख लो ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का,
और सेक्शन 10 देख लो ऑफ बीएसए का, देख लो एक बार। वो बोलता है सूट फॉर अकाउंट ऑफ डैमेजेस। आप सूट लेकर आ रहे हो तो आप सेक्शन 12 के बारे में बात कर रहे हो। आप मेरे साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 23 सिविल केसेस में एडमिशन कैसे होगा, सिविल केसेस में एडमिशन कैसे होगा, गो एंड चेक इट आउट। ये सारे आंसर्स मेरे पास हैं और ये सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करने लगूं तो मेरे सामने 10 नंबर का क्वेश्चन खड़ा है। अभी मैंने खड़ा नहीं करा है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज केम विद टाइम एंड अगेन, बार बार आया क्वेश्चन। गो एंड चेक इट आउट, चेक कर लेना डीजीएस का क्वेश्चन। और आरजीएस ने भी शायद 2021 में पूछा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो 2021 में पूछा है, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है 18 वाली वैकेंसी में। ठीक है, बीजीएस हर जगह क्वेश्चन देखने को मिला है, और ये क्वेश्चन 5 या 10 नंबर से नीचे तो नहीं होगा। यू विल नेवर गेट दिस क्वेश्चन इनटू द 3 मार्क और 4 मार्क, यू विल गेट आइदर इनटू द 5 और 6 मार्क, या फिर यू विल गेट दिस क्वेश्चन इनटू द 10 मार्क। क्योंकि आपके पास लिखने को बहुत, मैंने इसके अंदर 10 प्रोविजंस का हवाला दिया है। I have given the 10 provisions over here, and if the 10 provisions can be lined up, you'll be able to reproduce more than 4 pages, because you have this much of content. Do not raise your answer onto the basis of content, rather it has to be based on the quality. अभी क्वालिटी जो है, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने 5 नंबर का था तो मैं यहीं पे इसी तरीके से 2-2 लाइन का ये देके जाता, so that the examiner must know कि I know the concept. अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स कि आपने ये तो बता दिया कि सिविल है, क्रिमिनल है, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वाई। एक क्वेश्चन हमारे सामने फिर आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर हियर इन द डिफरेंस इन द एविडेंसेस, ऐसा लिखना से ठीक रहेगा, डिफरेंसेस इन एविडेंसेस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल। भाई आपने बोला कि ये सारे रूल्स सेम अप्लाई हो रहे हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो इनमें डिफरेंसेस क्या होगा। मुझे पता है अगर मैं सिविल के बारे में बात करूं और अगर मैं क्रिमिनल के बारे में बात करूं तो सिविल प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलेगा, चलेगा सर, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, हमेशा से पढ़ते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्योंकि हम चाहते नहीं कोई भी अक्यूज किसी भी आयोटा ऑफ डाउट की वजह से, किसी भी आयोटा ऑफ डाउट होने के बाद भी उसे कन्विक्ट कर दिया जाए, इफ देयर इज अ सिंगल आयोटा ऑफ डाउट तो हम उसे कन्विक्ट नहीं करते, बिकॉज हमारी कॉन्सेप्ट जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट के जूरिस्प्रूडेंस पे हमारा क्रिमिनल वर्क करता है। मैंने अगर सबसे बेसिक जो हमारे सिविल एविडेंस और क्रिमिनल एविडेंसेस के बीच में जो डिफरेंस बताया वो यही है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास इसके कैरेक्टर को लेके आएगा, कैरेक्टर को लेके आएगा, सेम चीज यहां पे चलेगी कैरेक्टर को लेके। कैरेक्टर में जब आप मेरे साथ सेक्शन 52 टू 55 पढ़ोगे ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और 50 टू 53 अगर आप मेरे साथ बीएसए का पढ़ोगे, आप मेरे साथ बीएसए का पढ़ोगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एविडेंसेस ऑफ द कैरेक्टर इन रिगार्ड्स टू द सिविल एंड द क्रिमिनल। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये जो रूल्स हैं, ये जो राइट है ऑफ द एविडेंसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड इनटू द सिविल, ये रिलैक्स किए जा सकते हैं, इट माइट बी रिलैक्स, एक जस्ट रिलैक्स रिलैक्सेशन में इसको बेटर लैंग्वेज में लिख देता हूं, जो कोई भी नोट्स पढ़ेगा उसे क्लैरिटी मिलेगी। रिलैक्सेशन ऑफ एविडेंस हो सकता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट ओनली। मैंने एफिडेविट दे दिया कि साहब मैंने वो जो बोला था वो गलत में बोल दिया था, एंड दिस इज द थिंग एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड द रॉन्ग थिंग्स। अरे क्या ये यहां पर पॉसिबल है क्या? द आंसर इज नो। द क्रिमिनल, आपका जो क्रिमिनल नेचर है उसमें आपकी लेवल अप हो जाता है, आप रीजनेबल डाउट के ऊपर जाके सोचना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि कोई भी
कन्विक्ट हो जाए विदाउट एनी रीजन. सिंस 90% evidences says he is a convict, he is a criminal, does not mean he is a criminal. अगर एक आयोटा ऑफ डाउट भी रह गया कि नहीं यार शायद ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही माइट नॉट बी क्रिमिनल, ही माइट नॉट हैव बीन कमिटेड दिस एक्ट, तो आपको सिर्फ वैसे ही छोड़ना पड़ेगा उस 1% की वजह से, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड ऑन द बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. अब चौथा, फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल रूल एंड द क्रिमिनल रूल के अगर बारे में बात बताऊं तो हमारे में जो डिफरेंस आएगा वो मैं अगेन एक चैप्टर में जाएंगे जहां पे हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ. यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा? ड्यूटी टू एस्टैब्लिश द केस. और यहां पे किसके पास होगा? तो यहां पे हमेशा प्रोसिक्यूशन के पास होता है. वो ही लेकर आया कि साहब दिस पर्सन हैज मर्डर्ड दी बी, मर्डर्ड द सी, राइट. यहां पे एस्टैब्लिश वो करेगा जो कंटेस्ट कर रहा है. अब ये हो सकता है कि ए बोल रहा है कि साहब इसने मेरी लैंड पे कब्जा कर लिया है, तो आप इसे परमानेंट इंजेक्ट कर दो. वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में बोलता है कि नहीं बॉस, इसने, मैंने कब्जा इसलिए किया क्योंकि ये भी 8 फीट या 8 इंच जो भी है कब्जा करके बैठा था, इसलिए मैंने किया. तो अब रिटर्न स्टेटमेंट वाला बताए कि उसने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, वो बताए कि सामने वाले ने कर रखा है, तो एस्टेब्लिश अब डिफेंडेंट को करना है केस. तो ये क्वेश्चन तो घूमता रहेगा, तो ड्यूटी टू एस्टेब्लिश द केस भी वहां पे घूमता रहेगा, क्योंकि ओवर देयर हैज बीन अ प्लीडिंग्स, एंड if one pleading says something else and if the other reply to that pleading says different thing, तो it depends कि ड्यूटी टू एस्टेब्लिश द केस किसके पास होगा. इट कुड बी द प्लेंटिफ, इट कुड बी द डिफेंडेंट, इट कुड बी द प्लेंटिफ और इट कुड बी द डिफेंडेंट. ये आपको समझना पड़ेगा. ये प्लेंटिफ कौन होगा और ये डिफेंडेंट कौन होगा, उसका एक आइडिया आपको लेना पड़ेगा. नाउ दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये 4-5 नंबर में आपके सामने एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. ये 4-5 नंबर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. वी हैव डन द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी हैव डन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस. हमने ओवरव्यू नहीं देखा, विल बी रेफरिंग टू ओवरव्यू. हम इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे सेशन को. दिस सेशन विल बी गोइंग फॉर 60 सेशंस. ये 60 सेशन चलेगा. यहां पे हम सिर्फ जजमेंट्स पढ़ेंगे मेजरली, और जजमेंट्स ऐसे नहीं पढ़ना है हमें कि हमने सिर्फ उसका ऑपरेटिव पार्ट देख लिया. हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे. विल टेक द होल पीडीएफ और उसके पार्ट्स को देखते चलेंगे. ये नहीं मैंने लिखा दिया दैट द ओपेक्स कोर्ट हैज हेल्ड दैट सो एंड सो द थिंग हैज हैपेंड. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. व्हाट वर द कंटेंशंस ऑफ द parties, what were the contentions of their councils, and what were the observations of the honorable courts, and what was the reason before passing the decision they have taken into consideration. इसलिए we'll be taking 60 sessions for this. So it will be for 2-month program of this. 1 hour की क्लास होगी, एंड हम इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस साथ साथ में करते चलेंगे. On every Sunday, we'll not have the class for this. We'll have either the revision session on Sunday, or else we will have the test on Sunday. But that would be totally based on mains paper, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बैक टू बैक आप बहुत लगा सकते हो, और मैं ऐसा एक भी स्कोप नहीं छोड़ूंगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपका कहीं से भी बच के निकल सके. सो दिस इज फॉर टुडे. ये सेशन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. इफ यू हैव स्किप्ड द सेशन, द नोट्स विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम एंड ऑन द व्हाट्सएप चैनल्स वी हैव. हम ये नोट्स भी शेयर कर देंगे सो दैट यू गेट द आइडिया. This is the first demo class, and we'll be having a demo class till Wednesday, and afterwards you can connect to a number
3 demo classes, 3 demo class, 60 session, detailed, and for contact, if you want to connect yourself, 9314074883. Notes and notes and this lecture will be uploaded on YouTube. Locutor is a channel. Thank you. We are winding up the session. If you have any question, if you have any appreciation, or else if you have any doubt, you may go to your chat box, type the message, or if you want to say, unmute yourself. Otherwise, we are winding up the session.